تو عثمان شاہد سے گزارش ہے کہ وہ ہم کے لیے تشریف لائیں. عثمان شاہد. تمام حاضرین گرامی کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. جی میں ہم شریف پیش کروں تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے نہ میرا پڑھنا اور آپ لوگ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول کرے، اور جس نیک مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے. آمین. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ پڑھے گا. الہی تیری چوڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زب و حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عز و ندامت ساتھ لایا. تمام حاضرین گرامی سے التماس ہے کہ میں ناشر شروع کروں گا، اس سے پہلے میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میرے ساتھ پڑھیے گا جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. الصبح بدا من طلعته والليل دجى وفراته ہے نور سابر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ میرے ساتھ پڑھیے گا بلند آواز میں، آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اللہ 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 اللہ. کنز الکرمی مولن
حجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے جبریل امین لیلا تا آسرا ورب دعاہ لحضرته فمحمدنا هو سیدنا وعیز لنا بإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اسی نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیکورم کا خیال نہ رکھتے ہوئے میں چودھری سعید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ اور ایک اور بات، ہمارے ساتھ یونس بھٹی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ یہاں پر بطور مبصر آئے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ باقی یہ لاہور ڈویژن کا پروگرام ہے، خالصتاً لاہور ڈویژن کا پروگرام ہے، چونکہ وہ بھی لاہور ڈویژن کا حصہ ہے تو لاہور ڈویژن کے حوالے سے اس کو یہاں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ باقی بات رہی کوئٹہ ڈویژن کے ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں، کیسرانی صاحب، سعود صاحب، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ پلیز تشریف رکھیں، پلیز تشریف رکھیں۔ باقی یہاں سے ایک ہی پیغام جانا چاہیے کہ بڑے عرصے کے بعد اتنا باپ، اتنا جلسہ، اتنے لوگ آئے ہیں اور یہ تاریخی قسم کا کنونشن ہے، تو ہم جو پیغام دیں گے، ہم جو روڈ میپ دیں گے وہ آج لے کے جائیے گا۔ کوئی ساتھی کسی سے برتر نہیں ہے، سب ورکر ہیں مجھ سمیت۔ 78 کا بھرتی ہوں، 79 میں یونین جوائن کی تھی اور پہلا ریزگنیشن راجہ امین مرحوم کو لکھ کر دیا تھا۔ یہ میرے بہت بڑے قائد میاں شعیب اللہ خان صاحب بیٹھے ہیں، جنہوں نے مجبور ہو کر سینئرز کے خلاف بغاوت کی اور ASM ایسوسیشن بنائی۔ کوئی بات نہیں کرنی، انشاءاللہ تعالی یہاں سے اتحاد، یکجہتی، یونٹی کا پیغام لے کر جائیں گے۔ باقی یہ مائک میں لاہور والوں کو دیتا ہوں، بڑی مہربانی۔ تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آج ہم جہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہم ایسے سمجھ لیں کہ ایک باپ کی اولاد ہے، اور ہماری یونین ہماری ماں کے برابر ہے۔ یہاں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، جتنے لیڈر ہیں، جو بھی ہیں، جس طرح ہے، ہمارا سب کو سلام ہے۔ لیکن ہمارا جو مین مقصد ہے وہ جس کے لیے آج لاہور ڈویژن نے اپنے ذاتی دلچسپی سے، محنت سے، دنیا کی لوگوں کی ایجنسیوں کی مخالفت کے باوجود آج اتنا بڑا پروگرام ارینج کیا ہے، اس پر میں اپنے ڈویژن، ملتان ڈویژن کی طرف سے اور تمام ساتھیوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ خدارا اگر آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنی عزت قائم کروانی ہے، خدا کے لیے دل میں سے نفرتیں نکال دیں۔
दिल में मोहब्बत कायम करें। एक घर में तो दो भाई भी लड़ पड़ा करते हैं, कोई बात नहीं, लड़ाई भी हो जाया करती है, राजीनामे भी हो जाया करते हैं। जिस तरह एक आजकल एक माटो बना हुआ है कि ज़्यादा काम ज़्यादा तनख्वाह, तो मैं उसी पॉइंट पर एक और भी काम करना चाहता हूँ कि यूनियन में जिसका ज़्यादा काम उसको ज़्यादा सलाम। जो ज़्यादा काम करेगा वो दिलों में और गहरा होता जाएगा। हमारे लिए वर्कर से लेकर लीडर तक तमाम लोग काबिल एहतराम हैं। सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखी जाए कि यार जो भी हैं जैसे भी हैं, है तो स्टेशन मास्टर ना, है तो एएसएम ना, तो झगड़ा किस बात का, लड़ाई किस बात की। मैं उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ, दिलों में जो भी है, जिस तरह भी है, जो भी रख के यहाँ आए हैं। लेकिन मैं इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप समझदार कैटेगरी से हैं, पढ़ी लिखी कैटेगरी से हैं, कम अज़ कम आप हक और सच को जहन में रखकर, दिल में रखकर कम अज़ कम हक की बात ज़रूर बोला करें, मेरी ये गुजारिश है। संपास यूनियन जिंदाबाद, संपास यूनियन जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। जी, मैं प्रेसिडेंट लाहौर डिवीज़न मियां ज़ैगम अब्बास से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और कारकुनों से खिताब करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरे जो दोस्त, मेरे अकाबरीन यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाए हैं, जनाब मंजूर अली मशहूरी साहब, यूनुस भट्टी साहब, इकबाल जावेद साहब, चौधरी सईद गुजर साहब और दीगर भी जितने मेरे काबरीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया, जिनके मुझे नाम नहीं भी याद आ रहे, तो मैं उन सब के क्वेटा से आए हैं। किसरानी साहब, सलाउद्दीन साहब, खानखेल साहब, को किसी का नाम रह जाए तो मैं उनसे आज 10 बदस्ता माफ़ी चाहता हूँ, कोई इंटेंशनली उनका नाम नहीं रह रहा। तो इन सब अकाबरीन का और यहाँ बैठे हुए तमाम दोस्तों का, कराची से आए हुए जनाब सेतु साहब, उमर इकबाल साहब, पीर डिनू साहब और दीगर जितने भी क्वेटा से आए हैं, हमारे सऊद भाई आए हुए हैं, केसरानी साहब आए हैं, पिशावर से आए हुए हैं, सलाउद्दीन साहब, बंगई साहब, इसाक साहब, इब्राहिम साहब, किसी साहब का नाम रह जाए तो मैं पहले मादरत चाह रहा हूँ भाई। और हमारे रावलपिंडी से बहुत खूबसूरत चेहरे और बड़े नाम, जनाब मलिक आदिल साहब, नईम खान साहब और दीगर जितने भी ये काबरीन तशरीफ़ लाए हैं, शाह साहब आए हैं और जितने हमारे ये न्यू कमर आए हुए हैं मेरे भाई, उन तमाम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज के आपने इस इशू के लिए ये जो शख्स भी यहाँ तशरीफ़ फरमाया, बेशक संपास लाहौर डिवीज़न ने ये आपको एहतमाम करके दिया है, लेकिन ये तमाम कैटेगरी का जो या नहीं भी आ सके किसी वजह से, ड्यूटी की वजह से, ज़ाती अपनी किसी परेशानी की वजह से, उनका भी मैं मशकूर हूँ और उनसे भी इस्तदा है मेरी कि वो आपने इस एक नुक्ते अपग्रेडेशन के लिए अपने तय दिल से और पूरी अपनी जान मार के और पूरे अपने जज्बे के साथ इसका साथ दे। और इसमें किसी किस्म का, देखें मेरे भाई, जब ये अपग्रेडेशन होगी तो हर उस शख्स को भी मिलेगा जो घर से भी नहीं निकला होगा और इसकी कई मिसालें हैं। लेकिन जो आप यहाँ मैदान अमल में लोग आके बैठ गए हैं, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। और लाहौर डिवीज़न की तरफ से आप सब अहबाब का, जितने मेरे पॉइंट्स मैन, कैबिन मैन, जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं और मेरे हमारे साथ हाथों में हाथ मिला के खड़े हुए हैं, मैं इन सब लोगों का मशकूर हूँ कि वो हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। और ख़ुसूसन आपने जो काबरीन यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं या कोई भी हमारा काबर हाल में तशरीफ़ फरमाया, हमारे लिए आप सब लोग मेहमान ख़ुसूसी हैं। कोई ये ना समझे कि वो कमतर है। बेशक एक कांटे वाला मेरी आवाज़ पे आया है तो मैं उसको भी सल्यूट करता हूँ। और सब इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ अपग्रेडेशन भी आपको मिलेगी और बाकी भी आपके इंशाल्लाह जो जायज़ हकूक़ हैं वो आपको इंशाल्लाह ये यहाँ बैठे हुए लोग लाए अमल का भी ऐलान करेंगे और आपको लेकर भी देंगे। और इन पे एतमाद रखें और ये हमारे काबिल भरोसा लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। जी, मैं अब दरख्वास्त करूँगा पेशावर डिवीज़न के प्रेसिडेंट सलाउद्दीन साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और कारकुनान से इज़हार ख्याल करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میرے برگزیدہ ریٹائرڈ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسپیشلی لاہور ڈویژن کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے اسٹیشن ماسٹر کی دل کی آواز اب تمام ورکرز کو جنہوں نے اس کام کو بہتر انجام کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کامیاب کیا، ان کو میں دونوں ہاتھ سے سلام کرتا ہوں. میرے ساتھیوں، سمپارس کے دوستوں، جیالو، یہ تحریک ہماری سب کی تحریک ہے. یہ کسی پشاور ڈویژن کی، لاہور ڈویژن کی، کراچی کی مخصوص تحریک نہیں ہے. ہم اس تحریک کو ماوراء لے جانا چاہتے ہیں. ہم ہر اس شخص کی آواز بننا چاہتے ہیں جو کہ گھروں میں بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو کہ اپنے تن من دھن لگا کر یہاں تک پہنچے ہیں. میں ان سب کو تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک لڑی بن کر اختلافات کو بھلا کر، اگرچہ اختلافات بہت تلخ ہیں، ان کا ذکر ہم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہم ایک بہتر سوچ کے حامل ہیں، ہم ایک بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. لہٰذا اس اسٹیج سے ہمارا پشاور ڈویژن کا یہ پیغام ہے کہ سب کو ہم سب ایک ہیں اور ایک بن کے ہم اپنی وہ گولز اچیو کر سکتے ہیں جو کہ ابھی تک ناممکن تھے. لہٰذا یہ ورکروں کا کنونشن ہے، یہ یہاں سے اب لیڈر نکلیں گے، یہاں سے ہم اپنی کامیابی کا راستہ چنیں گے. اور میری دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہمارا رہے اور ہمیں کامیاب کرے. والسلام. میں ملک جاوید صاحب ملتان ڈویژن سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں اور اظہار خیال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام دوستوں کا شکریہ کہ جو آج کل کے حالات کے باوجود، شارٹیج کے حالات، مین جو چیز ہے وہ ہماری شارٹیج ہے، اس کے باوجود، گھریلو مصروفیات کے باوجود ٹائم نکال کر یہاں آئے، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور ایک دفعہ پھر میں لاہور ڈویژن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ دوبارہ بکھرے ہوئے موتیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور جس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمپارس یونین میں ہمارے سویپر سے لے کر اسٹیشن ماسٹر ٹی آئی اے ٹی اوز تک لوگ موجود تھے بھی اور ہیں بھی، اور انشاءاللہ سب کی عزت ہمارے لیے ایک ہے. کوئی اس میں بڑا نہیں ہے، کوئی اس میں چھوٹا نہیں ہے. کوئی اگر بڑا ہوگا تو اپنے کام کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، یونین کو زیادہ ٹائم دینے کی وجہ سے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اصل آج ہمارا یہ جو کٹ ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اپ گریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. آج عرصہ ہو گیا ہے تمام ریلوے کی انتظامیہ، منسٹری، حتیٰ کہ ہائی کورٹ تک نے بھی ہمارے اس حق کو منظور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری نااہلیاں سمجھ لیں، ہماری کوتاہیاں سمجھ لیں، ہماری غلطیاں سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے انتظامیہ نے اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اپنے اس حق سے محروم رکھا. لیکن میں انتظامیہ پہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کب تک ہم یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے اور اس ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں کا اپ گریڈیشن کیوں ہو گیا، فلاں کیٹیگری کا اپ گریڈیشن کیوں ہو گیا. ہمیں خوشی ہے کہ ایک غریب جب اوپر آتا ہے تو اس کا سارا مورال اوپر ہوتا ہے، اس کے گھر کا ماحول اونچا جاتا ہے. ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن خدا را ہم انتظامیہ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن، آپ کے اپنے ہیڈ کوارٹر کی انتظامیہ نے ہمارے اس حق کو منظور بھی کیا ہے اور قبول بھی کیا ہے، اور ہمیں آج تک یہ حق کیوں نہیں دیا گیا. آج ہمارا یہاں سے پورے پاکستان سے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں
اور یقیناً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ میٹنگ، آج کا یہ کنونشن، آج کا یہ کٹ یقیناً ہماری توقع سے بہت زیادہ ہے، اور تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں جو یہاں حاضر ہیں، جو اس کوششوں میں مصروف ہیں. اور میں یہ بھی یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو اسپیشل سلام کروں گا کہ جنہوں نے اس کیٹیگری کی خاطر اپنا ٹائم نکالا، پیسہ خرچ کیا، سارا کچھ کیا، مخالفتیں لیں، دشمنیاں لیں، لیکن اسٹیشن ماسٹر کے اپ گریڈیشن کے چکر میں ابھی تک وہ ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹوں کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. وہ کس لیے دھکے کھا رہے ہیں؟ میری بات کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے، میری ایک عادت ہے، میں جس کو بات میری بری لگے میں ایڈوانس معذرت کروں گا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگ یہاں ایک پوائنٹ پر حاضر ہوئے ہیں. آج کے بعد ہماری تحریک کا آغاز ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا مقصد صرف اپ گریڈیشن ہوگا، اور تمام ڈویژن کے لوگ اس بات پر تیار رہیں کہ ہمارے جو قائدین، ہمارے جو ہراول دستہ ہیں، انشاءاللہ تعالی میں تمام ڈویژنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپ گریڈیشن کے لیے خاص طور پہ نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں. کنونشن لاہور ڈویژن نے، وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں لاہور لاہور ہے، سوئے ہوں کو جگا دیا لاہور نے. ساری ڈویژنز میٹھی نیند سو رہی تھی. لاہور کے ایک انیشیٹو سے پوری پاکستان ریلوے جاگ اٹھی. اس کا سہرا جاتا ہے میرے معزز سینئر صاحبان میاں زیغم عباس ڈوگر صاحب کو اور اسلم صاحب کو، اور باقی سارے تمام کارکن جو لاہور ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، اور لاہور ڈویژن کی باقی تمام باڈی کو. آج یہاں پہ اکٹھا ہونے کا مقصد ایک گیدرنگ نہیں ہے، پنڈی جلسے سے مقابلہ نہیں ہے ہمارا، وہ بھی اسٹیشن ماسٹر کیٹیگری ہے. لاہور ڈویژن کا آج کا کنونشن یہ بھی اسٹیشن ماسٹر کیٹیگری ہے، کوئی کہیں اور سے نہیں آیا، ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. آج یہاں پہ آنے کا مقصد ہے کہ ہم آگے یونٹی کے ساتھ چل سکیں، اپنے لیے کچھ بہتر مثبت انداز میں کر سکیں، جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے ہم وہ حاصل کر سکیں. ہمارے بزرگوں نے ساری سروس میں بہت کوششیں کیں، بہت کاوشیں کیں، وقار بحال کرنے کے لیے انتھک محنتیں کیں، لیکن جسے کہتے ہیں روٹن ایگز، کچھ روٹن ایگز نے ہمارا اپنی کیٹیگری کا بیڑا غرق کیا. انشاءاللہ مزید اس کیٹیگری کا بیڑا غرق نہیں ہونے دیں گے. سینئر صاحبان ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا 2019-20 کا بیچ سب کے ساتھ ہے، سب مل کے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس تحریک کو چلائیں گے اور بہت جلد اپ گریڈیشن لے کے واپس آئیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ. غفور خان کھیل صاحب پشاور ڈویژن سے درخواست ہے کہ وہ بائک پر تشریف لائیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں غفور خان کھیل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین قائدین سمپارس اور میرے سمپارس کے شاہینوں، السلام علیکم. وقت کی تنگی کی وجہ سے مختصر سی بات کریں گے. لاہور کے چھوٹے بھائی نے بات کی، مجھے اپنا ریکروٹمنٹ یاد دلایا. جب ہم بھرتی ہو کے 89 میں آ گئے، 62 لڑکے تھے، 2 کلاسیں تھی پشاور کی. میرے استاد محترم سمپارس کے لیے قابل احترام شخصیت آغا افتخار صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. یہ اچھے سسٹم میں جا رہے تھے، ان کے اپنی کیبنٹ بہت اچھی ورکنگ میں جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ساتھ ملگمیٹ نہ ہو، بلکہ اب جونیئر سمپارس بنا دے، بلکہ انہوں نے بنا دی. اسی جونیئر سمپارس کا رزلٹ ہے آج کہ میں بھی یہاں کھڑا ہوں، صلاح الدین صاحب بھی یہاں کھڑے ہیں، میرے باقی ساتھی بھی یہاں کھڑے ہیں، اور ان کی تربیت کی تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں. آج کا پروگرام
मैं सलूट करता हूँ। मेरे भाई ने अपनी मुंह से कहा, वरना आज हर बंदा ये समझता है कि लाहौर डिवीज़न ने सोयों को जगा दिया। मेरी 32 साल सर्विस में 31 साल संपारस के साथ मुंसलिक रहा और 29 साल में बड़ा पुरजोश रहा। जहाँ जहाँ मेरा बस चला, जहाँ जहाँ मेरा ज़ुबान चला, जहाँ जहाँ मेरे पैर चले, पेशावर से लेकर कराची तक, क्वेटा तक में रहा। लेकिन 2018 के बाद मैं बिल्कुल कॉर्नर हो गया, क्योंकि मैं मायूस हो गया था कि अब हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन आज इस गैदरिंग को, इन लोगों को, खुसूसन यंगस्टर्स को हम भुगत चुके। हमने जितना करना था, पता नहीं ज़िंदगी भी साल 2 साल है कि नहीं है। अगर ज़िंदा पे रहे तो साल 2 साल में हम रेल में मैक्सिमम बंदे नहीं होंगे। लेकिन जो नए लड़के आए हैं, वेल एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनका विजन है, उनकी सोच है, उनके लिए आज एक बेहतरीन मौका है कि वो उन लोगों को जो नहीं करना चाहते, जो नहीं कर सकते या जो नहीं कर सके, उन पे मज़ीद इत्मीनान ना करे, वो आगे आएँ, वो आगे आएँ, ले लें अपना काम। मुस्तकबिल उनका है, अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला वो ख़ुद करे। किसी को ये हक़ नहीं कि वो किसी के मुस्तकबिल का फ़ैसला करे। आज की ये गैदरिंग कोई मामूली नहीं है। 2483 की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान रेलवे की, स्टेशन मास्टरों की, और मेरे ख़्याल में 2000 से कम बंदे इस वक्त ऑन रोल है। आप अंदाज़ा कर ले कि तकरीबन हर डिवीज़न में आपको 25 से 27% तक शॉर्टेज है। कैसे आए लोग? आखिर रेल भी तो चलानी है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि फ़ैसला आज, या और क्या कहते हैं वो पठान बंदा जब उर्दू बोलता है वो भी ऐसा ही होता है, डू और डाई, आर या पार। आज के इस फंक्शन ने फ़ैसला करना है कि हमने आगे क्या करना है। कायदीन बैठे हुए हैं, मैं एक अदना कारकुन हूँ संपारस का, लेकिन इनकी मेहरबानी की बोलने देते हैं। कायदीन आपको रोड मैप भी देंगे, आपको लाइन ऑफ एक्शन भी देंगे, आपको समझाएंगे भी। लेकिन क्या ये कायदीन आप लोगों पे एतमाद कर सकते हैं? क्या आप किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं? मुझे पूरी आवाज़ दी, क्या आप किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं? मेरे बड़ों, यही लोग हैं, यही आपकी कौम है। आगे ये चीज़ इन्होंने संभालना है। यहाँ से हमने मेरे ख़्याल में हेडक्वार्टर भी जाना है, वहाँ जो भी बात करनी है। कोई ऐसी बात आज हमने नहीं करनी, क्योंकि वो बड़ा बेवकूफ़ बंदा होता है वो। ये इस चीज़ में मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है कि बड़ा बेवकूफ़ बंदा होता है वो, जो कोई बंदा आके उसको मिलता है और उसे कहता है कि तुम हट जाओ। मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन पिछले 11, 12, 13 साल से मेरा इस चीज़ में बड़ा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ जो भी आए, कोई भी आए, वो स्टेशन मास्टर हो, वो एएसएम हो, वो संपारस का मेंबर हो, ये हमारी बेवकूफ़ी हुई कि हम उसको दुत्कारें। संपारस स्टेशन मास्टर की हैसियत से, आज के प्रोग्राम को रौनक देने की हैसियत से, आज के प्रोग्राम को ऑन करने के लिए कोई भी आए, वी आर सेइंग मोस्ट वेलकम टू हिम। मेरा ख्याल है कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात जिससे किसी की दिलजारी हुई हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कारकुनान से इज़हार ख्याल करें। जनाब यूनुस भट्टी साहब। इज़्ज़त माब जनाब जवेद इकबाल साहब, चौधरी अब्दुल गफ़ार साहब, चौधरी सईद गुजर साहब, और मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बड़े भाई मंजूर अली मशहूरी साहब, आगा इफ्तिखार साहब, बाकी जितने दोस्त स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं, हाल में बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम। मैं लाहौर डिवीज़न का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत खुश हूँ कि लाहौर डिवीज़न जो संपार्स यूनियन की एक डिवीज़न है, उसने अपनी कारकर्दगी, अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद को आज
इस स्टेज पर साबित किया है कि हम सब स्टेशन मास्टर संपार्स यूनियन के मेंबर यहाँ अपने ड्यूटियों को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। अजीज दोस्तों और साथियों, मैं थोड़ा सा गुजरे हुए हालात पर तबसरा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान रेलवे में जितनी भी यूनियंस बनी, मुझे यहाँ तक मेरा नॉलेज है, इल्म है, उसमें कोई भी ऐसी यूनियंस किसी कैटेगरी की अपग्रेडेशन के लिए आज तक कामयाब नहीं हो सकी। ये SMGA जो पहले यूनाइटेड यूनियन की एक अलाई इत्तेहादी थी और जिसके सदर सरबरा चौधरी उमरदीन साहब थे, इस SMGA ने वहाँ इतनी जद्दोजहद की कि आप जिन स्टेशनों पर आज बैठे हुए हैं इनकी अपग्रेडेशन बसीते SMGA यूनाइटेड यूनियन के प्लेटफॉर्म से 80 की दहाई में मुमकिन हुई। और फिर जब NIRC ने इस बात पर यह कदगन लगा दी कि NIRC के साथ कोई एसोसिएशन कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो फिर ये यूनियन जो है इसने फैसला किया कि हम पहले स्टेशन मास्टरों, कैबिन मैनों, गेटमैनों, गैंगमैनों की पहले ही जिम्मेदारी निभाते हैं, तो लिहाजा आज हम इस एसोसिएशन को, SMGA को स्टेशन मास्टरों की यूनियन बनाते हैं और जिसका उन्होंने इसको नियर अबाउट 78 के करीब इसको संपार्स यूनियन बना दिया, स्टेशन मास्टर ग्रुप एंड ऑल पाकिस्तान रेलवे स्टाफ यूनियन। और इसी यूनियन ने 82 में 84 के करीब पहली अपग्रेडेशन जो थी वो स्टेशन मास्टरों की इस यूनियन के प्लेटफॉर्म से हुई। मुझे याद है कि मैं 8वें स्केल में स्टेशन मास्टर ASM ग्रेड 1 था और जब इसको अपग्रेड किया गया तो 9वां स्केल हो गया। और फिर उसके बाद इसी यूनियन ने 2006 में जब अनामली पैदा हुई और मंजूर अली मशहूरी साहब इस यूनियन के बानियों में से शामिल है, ये उस वक्त उस सारे काफिले का सीनियर मोस्ट हरावल दस्ता थे और इस यूनियन ने, आप सब ने इसके फोरम से एक बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी। वो बड़ा कठिन दौर था, वो माशाल्लाह का जैसा दौर था और रेलवे में मिलिट्री बैठी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने मैं जनाब हमारे बहुत ही प्यारे साथी जो अब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमें रौनक बख्शें। जनाब अकरम मुअज़्ज़म साहब। तो यही यूनियन कैबिन मैनों के लिए, पॉइंट्समैन के लिए, स्टेशन मास्टरों के लिए 2000 अप्रैल 2007 में अपग्रेडेशन कराने में भाइयों का मफाद है। सईद गुजर साहब का या चौधरी अब्दुल गफार साहब का कहेंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, कोई किसी तंजीम का परमानेंट रुकन नहीं रहता, परमानेंट ओहदेदार नहीं रहता। तंजीम आप लोगों की है। आज अगर हम हैं तो कल हम चले जाएंगे और जाने के लिए तैयार भी हैं। मैं बताता हूं कि मैं कम से कम इस चीज़ पर, फलसफे पर कायम हूं कि जब आने का वक्त है तो फिर जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अजीज दोस्तों और साथियों, ये बात थी। आज जब ये सारा हुआ, मैं लाहौर डिवीज़न को फिर एक दफ़ा इस बात की खराज तहसीन पेश करता हूँ कि लाहौर डिवीज़न ने पूरे मरकज़ को दावत दी और मुझे दावत दी और मैं बहसीते जनरल सेक्रेटरी इधर इस दावत पर, बेशक मेरी डिवीज़न है लेकिन मैं यहाँ मौजूद और आपके सामने हाजिर हुआ हूँ।
बाकी सारी चीज़ें खुली किताब की तरह आपके सामने है, किसी बात का कोई दावा नहीं है। लेकिन एक बात का दावा है कि यूनियन के अंदर यूनिटी रहनी चाहिए और अपग्रेडेशन होनी चाहिए। तीसरा कोई एजेंडे पर कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए चाहे जहां मर्जी जाना पड़े। रेलवे इंतजामिया जो है उसने हमारे केस को, मंजूर अली मशहूरी साहब ही इस केस के टाइटल हैं, इसको फॉरवर्ड किया, इसके लिए बजट दिया और फाइनेंस को लिखा कि हम बजट देने के लिए तैयार हैं। रेलवे से आज भी मैं ये बात कहता हूं कि हमारा रेलवे से कोई एहतजाज नहीं है, लेकिन रेलवे के जरिए से हमारा एहतजाज है कि रेलवे हमारे एहतजाज को, हमारे हक को फाइनेंस डिवीजन के साथ जंग करे, लड़ाई करे और उस अप्रूवल के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हम इस हक से कतल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा अजीज दोस्तों, साथियों, ये इसी तरह जब लाहौर डिवीजन का हुआ है तो आगे डिवीजनों में भी जलसे चलेंगे, ये कंटिन्यूटी रहेगी और संपार्श यूनियन के एक छतरी तरह हम सब मुतहद हैं, मुतहद रहेंगे। और कोई भी एक बात है, जब हम मिलकर किसी एक्शन पर जाएंगे तो कामयाबी का 100% इम्कान होगा। अगर एक शख्स भी बाजू नीचे करके खड़ा रहा तो उससे भी फर्क जरूर पड़ता है। लिहाजा सब मिलकर आगे बढ़े, बगैर किसी चीज को छोड़ते हुए मिलकर आगे बढ़े। संपार्श यूनियन आपके साथ है और आपकी अपग्रेडेशन के लिए हर जदोजहद की हमायत करती है और हमायत करती रहेगी और आपके साथ है, और पूरा का पूरा पाकिस्तान स्टेशन मास्टरों का आपके साथ चलेगा। लाहौर डिवीजन जिंदाबाद, लाहौर आगे बढ़े इंशाल्लाह। पूरा मरकज, पूरी संपार्श इनके साथ है। बहुत शुक्रिया। वास्सलाम। मेरी संपार्श यूनियन के तमाम कारकुनों से गुजारिश है कि वो अपनी नशिस्तों से खड़े होकर तालियों की गूंज में संपार्श यूनियन की आन, संपार्श यूनियन की शान, नौजवान नस्ल के हर दिल अजीज़ लीडर जनाब मंजूर अली मशहूरी साहब का इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम आगा इफ्तिखार अली साहब, शुएबुल्लाह खान साहब, चौधरी अब्दुल गफ़ार साहब, इकबाल जावेद साहब, हमारे मेहमान दोस्त जनाब यूनुस भट्टी साहब, और ख़ास तौर पे दुनिया में जो एक अजीम रिश्ते बनते हैं, जो तारीख़ में लिखे जाते हैं, जो भाइयों से भी शायद ज़्यादा, भाई से कोई नहीं होता ज़्यादा, लेकिन इस इज्तिमाई जदोजहद में मेरे भाइयों से भी ज़्यादा मेरे मोहसन जनाब चौधरी मोहम्मद सईद गुजर साहब और तमाम मेरे गयूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, प्रोग्राम को हम शार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कम अल्फाज में बग़ैर किसी की ग़ीबत किए हुए, सच भी अगर हम बोलें तो आज वो भी ग़ीबत में तस्वर होगा, क्योंकि हम इस चीज़ पे रात को फ़ैसला किया था हमने कि हमने भाइयों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ये हमारा आज चंद चीज़ें जो पुराने साथी मेरे बैठे हैं, बहुत अच्छा वक्त हमने गुजारा है। दो चीज़ें हमारे सामने हैं जो हमारे नई नस्ल है, जो दोस्त हैं, उनको सही नक्शा देना चाहिए। उनको इल्म हो कि आज जो हम यहाँ खड़े हैं वो कैसे खड़े हैं, और ये मौका हमें फराहम किया लाहौर डिवीज़न के उन शाहीनों ने। मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को बचा के न्यूट्रल रहते हुए ये इतने हीरे मोती जवाहर शेर जवान इकट्ठे किए हैं। मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ।
दोस्तों, दो चीज़ें आती हैं, जिदोजहद। अब आप तारीख देख लें, दुनिया की पूरी, जब से हज़रत आदम से लेके आए, जहाँ से हमने जमा की है तारीख, तो ज़िंदा वही रहते हैं जो जिदोजहद करते हैं, ख्वाह वो मज़हबी हो, ख्वाह वो सियासी हो, लेकिन उसका मकसद क्या है कि इंसान ज़ात की भलाई, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। लाखों करोड़ों लोग आए, मर गए, पता ही नहीं है, बाप का पता है, दादा का पता है, ज़्यादा से ज़्यादा परदादा का पता है, आगे का हमें ही पता नहीं है। लेकिन जो आज से 1400 साल पहले शहीद हुए, या दुनिया की तारीख में जितने अजीम लोग थे, वो आज भी किताबों में भी महफूज है, और आप उन रेफरेंस दे के आप अपनी जद्दोजहद को आगे ले जाते हो, जिसमें शिकागो का जिक्र करना भी लाजमी है, जो आज उन्होंने हमें ये हक दिया और आज आप लोग इकट्ठे बैठे हो। अगर आप यही कहें कि किस्मत पे छोड़ देते हैं, ऐसे किस्मत नहीं तब्दील होती जब तक आप लोग नहीं उठोगे। ठीक है, फिर उसमें से ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनमें कायदाना सलाहियतें होती हैं, खुदादाद भी, और उनका नज़रिया, उनकी इंसानियत, उनकी इंसान दोस्ती और अजीम आदर्श, वो लोग बहुत आगे जाते हैं, अपनी कौमों को, अपने इंसानों को, इन मिसाकीन को, गरीबों को आगे लेकर वो इनकलाब करके उनके हालात तब्दील कर देते हैं। इसी दौरान 2 नंबर भी पैदा होते हैं जो उनकी जिद्दोजहद को नाकाम करते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है, जिद्दोजहद तो की आपने, अगर आप साबित कदम ना रहे, गौर से सुने, तो आपकी सारी जिद्दोजहद ख़त्म हो जाती है। कई तारीख में लिखे हुए, कई लोग मारे गए, कई शहीद हो गए, तारीखें ख़त्म हो गई, उनका कोई पता नहीं है, और साजिशें चलती है। सबसे बड़ी चीज़ कि उससे बचा जाए। मुझे आज, मैं इसको ज़्यादा नहीं करना चाहता, मुझे आज वो वक्त याद आ रहा है, यही वही जगह है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यही बर्ड इंस्टीट्यूट है। पहला इजलास हमारा यहाँ हुआ था, वो फ़ोटो भी अभी मेरे पास पड़े हैं, जब जावेद इकबाल और ये मेरे साथी और बड़े खूबसूरत नौजवान हैं, मैं भी सबसे उम्र में कम था। ये आपकी तंजीम बनी कैसे? मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे मोहसन बैठे हैं, SMG हुआ करती थी, यूनाइटेड यूनियन CPA थी, हमें तोहफे में वो मिली, तोहफे में क्या, जहेज़ में मिली, और एक फ्रेम दोबारा मिली, मैं उसके इस पे नहीं जाता, आज तक वो चल रही है। जब हम भर्ती हुए थे, नए नए थे, हम इलेक्शन लड़े थे, आज तक वही CPA है, जबकि इदारों में हर 2 साल बाद होनी चाहिए। और हमारे इदारे ने कभी ट्रेड यूनियन को तस्लीम ही नहीं किया। सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में कोई कम CPA है तो वो रेलवे की है, जिसकी वजह से कई मसाइल पैदा हुए हमारे पास। उस वक्त यूनाइटेड यूनियन थी, रेफरेंडम हुआ, स्टेशन मास्टर जो है वो स्ट्राइकिंग पावर था, यूनाइटेड यूनियन की मजबूरी थी कि वो स्टेशन मास्टर को अपने साथ रखे, उनके कंधे पे बंदूक चलाए और आगे चले। हमारे बड़े बड़े नाम यूनाइटेड यूनियन में थे। बुरी शिकस्त हुई, बहुत ज़्यादा बुरी शिकस्त हुई, और मैं आज ये भी बता दूं कि वो भी साजिश का शिकार हुई थी। उस वक्त भी यही, जो आज हम गलतियां करने जा रहे हैं, उस वक्त भी यही हुआ था। जब वो ख़त्म हुई तो स्टेशन मास्टरों पे डंडा चलना शुरू हो गया। और संपास की तारीख पे आओ तो ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एसोसिएशन थी, एसोसिएशनें ख़त्म कर दी गई, तो इन्हीं बुज़ुर्गों ने वो रजिस्ट्रेशन संपार्स की करा ली, सारी कैटेगरी इकट्ठे कर ली, हमारी संपार्स बन गई। लेकिन रही है संघ यही, उसका आगाज़
जब ये रेफरेंडम में यूनाइटेड यूनियन को शिकस्त हुई है तो ये मजबूर हुए कि स्टेशन मास्टर का अब वकार नहीं रहा, अब क्रिटिसाइज भी हो रहा है और विक्टिमाइज भी हो रहा है। तो जदोजहद का आगाज़ किया गया, किसने किया? हमारे अजीम लीडर। हम लोग खुशामद परस्त हैं, हम लोग बुतों की पूजा करने वाले लोग हैं ट्रेड यूनियनों में और सियासत में, मुर्दा परस्त हैं। अगर सबसे ज़्यादा किसी का कमाल है ना, वो है राजा